आसनसोल सुगम पार्क के निवासियों ने विभिन्न मांगों को लेकर एडीडीए कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए सीईओ को ज्ञापन सौंपा। ठीक है, काम है, आप लोग को समझाना हमारा। ये हमारे काम है, सीओ साहब के बात में भरोसा करते हैं। लिखित दे। কি প্রবলেম আপনাদের? সর্বপ্রথম নমস্কার আপনাকে। আসলে সুগম পার্ক এমন একটা পরিবার হয়ে গেছি আমরা। এই পরিবারে আমরা সদস্যরা আজকে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি। এটাই বলে দিতে পারে আমরা বেসিক্যালি সাধারণ মানুষ, চাকরি বাকরি করে খায়, কেউ ব্যবসা করি, কেউ মাস্টারমশাই আছে, বিভিন্ন প্রফেশনে আছে। রাস্তায় কখন নামতে হয় মানুষকে? আমরা এত কষ্ট পেয়েছি এই বিল্ডারের কাছ থেকে যে আমাদের দাবি দেওয়ার এত কাগজপত্র করা হয় জোলার কাছে, উনি কোনো কিছুতে কর্ণপাত করছেন না। সাধারণ মানুষ আমরা হতে পারি, আমরা 40 লাখ 50 লাখ টাকা দিয়ে যারা ফ্ল্যাট কিনে, তারা বলুন তো সারা জীবনে একটা অর্জিত টাকা যখন মানুষকে দিয়ে বলে ফ্ল্যাটটা কেড়ে, তাদের কাছে কী আশা থাকে? আমরা এখানে 70-80 বছর 100 বছর সুরক্ষিত থাকবো। এই জন্য 999 ইয়ার্সের লিজের কথা বলা হয়। বিল্ডিংগুলোকে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন, আপনারা যদি একবার আসেন, যে বিল্ডিংগুলো 6-7 বছরে ক্র্যাক ডেভেলপ করে গেছে। বিল্ডিংগুলো 7-10 বছর হয়ে যাওয়ার পরে রং করা কোনো কথা মাথায় আসছে না। মানুষের মধ্যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল করার চেষ্টা করছে। নতুন বিল্ডিংগুলো নতুনই মতো রয়েছে, পুরনো বিল্ডিং পুরনো মতো রয়েছে। এবার পুরনো বিল্ডিংয়ের লোকদের একটা ডিভিশন করে করা যাবে না, এই ধরনের একটা ডিভাইড অ্যান্ড ব্রিটিশ রুলের মতো কাজ চলছে। রাস্তাঘাটগুলো চুরমার হয়ে গেছে, একটা লিপে দেওয়ার মতো চেষ্টা চলছে। ও চলে যেতে চায়। 31 ডিসেম্বর 2021 ওর কমপ্লিশন ডেট আছে অ্যাজ পার আইডিডিএ এএমসি, ওদের যে কথাবার্তা আছে রুল অনুযায়ী। তো সেই সময় কি করতে চাইছে? আমাদের মধ্যে একটা ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। 1 টাকা 25 পয়সা স্কোয়ার ফুটে ওর এতদিন ধরে চলে আসছিল, হঠাৎ যে মুহূর্তে ও চলতে চাইছে, ও বলতে চাইছে এটা আমার কাছে অপর্যাপ্ত। এটা কী করে সম্ভব হয়? কোনোদিন তো উনি বলতে চাননি যে 1 টাকা 25 পয়সা আমাদের কাছে কম, এটা দিয়ে আমাদের সংসার চলবে না, এটা দিয়ে আমাদের মেনটেন্যান্স কস্ট চলবে না, আমরা আপনাদের রাস্তাঘাট করতে পারবো না, আপনাদের বিল্ডিং রং করতে পারবো না। হঠাৎ এই সময় কেন উনি বলছেন? কেন উনি জানতেন কোনো বিল্ডার কখনো লসে থাকে না? আমরা জানি উনি লসের কথাটা বলছেন। লসটা যদি প্রমাণ করে দিতে পারেন উনি কাগজ কলমে, তাহলে উনি করতে পারবেন না। কখনো কোনো জিনিসের প্রয়োজন মনে করেননি একটা এস্টিমেট তৈরি করা, ইনকাম এক্সপেন্ডিচার এস্টিমেট অথবা ব্যালেন্স শিট আমার সঙ্গে পেশ করার। আমাদের অ্যাপ্রুভ স্যাংশন প্ল্যান উনি হাতে কখনো দেননি। মানুষকে তো আপনার বিল্ডিং কী আছে জানতে অধিকার দিতে হবে। অ্যাজ পার রুল দেওয়া আছে, WBHR হিরাতে রুল দেওয়া আছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের রুল আছে, কিন্তু কোনো জায়গাতে উনি কর্ণপাত করেন না। সবাইকে ভাবছেন পিরপিতির টাকা দিয়ে কিনে নেবো। আমরা বিশ্বাস রাখি এডিডিএ অথরিটির উপরে, আমরা বিশ্বাস রাখি এএমসির উপরে। এখনও পর্যন্ত আইন আছে, সাধারণ মানুষের আওয়াজ পৌঁছবেই মানুষের কাছে। আর আপনারা যখন সঙ্গে আছেন আমাদের জয় নিশ্চিত, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবো। আপনার নামটা? আমি সঞ্জয় মণ্ডল, সুগম পার্ক স্টুডেন্ট ফোরাম, এখনও রেজিস্টার্ড হয়নি, সেই অ্যাসোসিয়েশনে আমি। जो हमारा बिल्डर है उसके खिलाफ था, इसमें हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे हैं। मैं कुछ मेन जो इशू है उसके बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके सामने। सबसे बड़ा इशू ये था कि हम लोगों को वो पोजीशन दे दिया था बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए हुए। सबसे ये शुरू से ये स्टार्ट हुआ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना लिए हुए वो हम लोगों को पोजीशन लेटर दे दिया, और ये इलीगल होता है, ये नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया। हम लोगों को बोला गया कि हमारा सीसी मिल गया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमको मिल गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बाद में हम लोगों को पता चला, उसका हम लोगों के पास प्रूफ भी है। तो ये एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि पोजीशन लेने के बाद 3 से 4 साल तक रजिस्ट्रेशन में डिले हुआ। रजिस्ट्रेशन में डिले होने के कारण एक मात्र था कि पार्किंग वो अलॉट नहीं कर पाया किसी को भी। पैसा हम लोगों से पहले वो ले लिया, पोजीशन के टाइम में उन्होंने पैसा ले लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन 3 साल के बाद किया, जिसके कारण हमको एडीडीए में लेट फाइन देना पड़ा। पूरा जो चार्ज लगता है, रेंट जो लीज रेंट होता है एडीडीए का, उसका हमको लेट फाइन देना पड़ा। ये एक ह्यूज अमाउंट है। इसमें एडीडीए भी बोलते हैं कि हमारा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये तो आपका सुगम होम्स ने ऐसा किया हुआ है, तो मैं क्या करूं? सुगम होम्स चार्ज करता है एडीडीए के ऊपर कि उन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन मांग किया, ये बताइए। मांग तो मैं बता रहा हूँ, हमारा लेट रजिस्ट्रेशन हुआ, इसके कारण हमारा जितना मॉनिटरी लॉस है उसको वो कॉम्पनसेशन दे। नंबर 1 मांग जितना सारा है, उसमें हमारा पार्किंग है, उसमें हमारा एमिनिटीज़ है, जो फैसिलिटीज़ उनको देना था वो 2 से 8 साल के बीच में भी उन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। उस सारे के लिए हमको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। उन्होंने जो इलीगल वे में लोगों से
फाइन के रूप में लेट फाइन लिया है, सबसे मैक्सिमम लोगों से लिया है, लेकिन उसने अपना जो उसका डिले हुआ है बिल्डिंग देने में, पोजीशन देने में, उसके लिए वो किंतु कोई पैसा नहीं दिया, कोई कॉम्पनसेशन। मेरे को सारा कॉम्पनसेशन चाहिए उन लोगों का, और प्लस जितना लेट फाइन लिया है उसके लिए उसका कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई तरीका नहीं, कोई प्रूफ नहीं दिया कि मैं क्यों ले रहा हूँ लेट फाइन। इसका हमको पूरा कॉम्पनसेशन चाहिए। हमारे कुछ और भी डिमांड्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स में क्रैक्स डेवलप हो जाता है, रिपेयर नहीं करता है, रिपेयर करने के बाद इतना ख़राब हो जाता है बिल्डिंग का हालत कि बोले कि एक बार कम से कम रिपेंटिंग कर दो। 8 साल 10 साल पुराना बिल्डिंग है, रिपेंटिंग नहीं कर रहा है एकदम, उस पर वो अडिग हैं कि हम नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, आप लोग को जो करना है कर लो, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें हैं जो मेन रोड हमारा ख़राब है, उनका ही काम चला रोड में। लेकिन वो बोले थे, हमको प्रॉमिस किए थे कि हम सारा रोड को फिर से जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया से रिपेयर करेंगे, जैसे आप चाहोगे वैसे, लेकिन अभी वो कर रहे हैं। जहाँ तक रोड की बात है तो रोड का साइज एज पर सैंक्शन प्लान जो होना चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं है। आप कभी भी, आज कल भी हम लोग मेजरमेंट लिए हैं उसका, हर जगह वहाँ पे वो डिफ़ॉल्टर हैं। तो ये बताइए, एएमसी का सैंक्शन प्लान को भी वो डिफाई कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं इसको। मैं तो कहता हूँ कि एएमसी आए, अपना सर्वेयर भेजें, उसको बढ़िया से उनको एक बार फिर से मेजर करें सर्वेयर के द्वारा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और ये पता चले लोगों को कि सुगम होम्स ने क्या किया है। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं सुगम पार्क का रेसिडेंट हूँ। धन्यवाद। আমাদেরকে মানে আমরা সুগম পার্কে যারা আছি, সুগম পার্কে যারা ফ্ল্যাট কিনেছি, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যারা আমাদের এখানে রিটায়ারমেন্ট করে পরে তারা একটু শান্তিতে বাস করার জন্য এখানে ফ্ল্যাট কিনেছে এবং সেরকমভাবে কথা বলেছিল ওরা যে এরকমভাবে দেখিয়ে এগুলো দেওয়া হবে। তো দেখা যাচ্ছে যে তারা প্রচণ্ড হেনস্থার শিকার হচ্ছে। যেমন হেনস্থার শিকার বলতে শিকার হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যারা যে সুগম পার্কের যে জিএম আছে, ওনার যে ব্যবহার হচ্ছে যেমন ওনার আমরা এমপ্লয়ি, সেই ধরনের ব্যবহার যে আমরা যে এখানে ফ্ল্যাট কিনেছি, আমরা আপনাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করি, আমরা এখানে বিক্রি করেছেন, আমাদের কাছ থেকে আপনারা লাভ নিয়েছেন, তো ওনার সঙ্গে কোনো ধরনের কোনো কথা বলতে গেলে উনি এমন ব্যবহার করেন যেমন ওনার আমরা অধীনস্থ কর্মচারী। আপনাদের নিজের প্রবলেমটা বলুন। প্রবলেম হচ্ছে আমাদের যে ফ্ল্যাটের যে অবস্থা, যেগুলো ছেড়ে গেছে, এই কয়েক বছরের মধ্যে ছেড়ে গেছে, ভেঙে গেছে, ঠিক আছে, তারপর রঙগুলো পুরো ফেড হয়ে গেছে এবং এই রঙের ফেড হওয়ার মেন কারণ হচ্ছে ওনারা 8 বছর বা 10-12 বছর ধরে এখানে কনস্ট্রাকশন করছেন। সেই কনস্ট্রাকশনের ধুলা ময়লা যেগুলো আছে সেগুলো এসে পরে বিল্ডিংয়ের ওপর পড়ছে, সেই জন্য অনেক সময় আমাদের যে কালারটা ফেড হয়ে যাচ্ছে। সেটা বলছে এটা আমাদের মেনটেন্যান্সে যে পয়সা ওঠে না, সেই জন্য আমরা করতে পারি না। কিন্তু যে মেনটেন্যান্সের যে বেশি হয় বা কম হয় তার কোনো হিসাব তারা দেয় না। তার যে কী প্রবলেম সেটা আমাদের যে এসপিআর কমিটি হচ্ছে 6 বছর ধরে 7 বছর ধরে, তাদেরকেও কোনো আপনারা মেইনটেনেন্সের জন্য কত টাকা দেন? আপনারা মেইনটেনেন্সের জন্য কত আমরা টাকা? 1 টাকা 25 পয়সা হিসেবে স্কোয়ার ফুট দিই। 1229 স্কোয়ার ফুট যাদের আছে তাদের মোটামুটি প্রতি মাসে 1700 টাকা এবং 1700 টাকা করে পড়ে। এবং ক্লাবের চার্জ যেটা ওরা যোগ করছে, ক্লাবের চার্জটি কিন্তু আমরা 226 টাকা এক্সট্রা দিই। এবং ক্লাবের যে হিসাব, সেই হিসাব যে এখানে অনেক সময় আমাদের যে লোকজন এখানে অনুষ্ঠান বাড়ি বুক করে, অনেক টাকা এখানে ইনকাম আছে, সেই ইনকামের হিসাব ওরা কোনো মতে দেয় না। যদি আপনি ক্লাবে যান, ক্লাবের জিমের অবস্থা দেখবেন, সুইমিংয়ের অবস্থা দেখবেন এবং যেগুলো দেবার কথা, আপনার লাইব্রেরির অবস্থা দেখবেন, একদম মানে তথৈবচ অবস্থা, খুবই খারাপ অবস্থা। ওগুলো থেকে কোনো ধরনের কোনো কিছু ঠিক করা, এমন জিমে ইনস্ট্রুমেন্ট দেওয়া আছে 6 বছর ধরে চলছে, সেগুলো খারাপ হয়ে গেছে। 800 রেসিডেন্স, সেখানে কি 6 বছর ধরে একটা চলে ট্রেডমিল, সেগুলো খারাপ হয়ে গেলে ঠিক করাবার নাম করে না। 9 মাস 11 মাস পরে ঠিক করায়। যখনই বলা হয় তখন বলে ক্লাবের আমরা মেনটেন্যান্স পাচ্ছি না। কিন্তু ক্লাবের মেনটেন্যান্সের সঙ্গে আমাদের সুগম পার্কের যে এমনি ফ্ল্যাটের মেনটেন্যান্স, তার কোনো মিল নেই, তার কোনো যোগ নেই। তাহলে ক্লাবের মেনটেন্যান্স আলাদা নেওয়া হয় এবং সেখান থেকে ইনকামও আলাদা আছে। আপনি যদি আমাদের যে রাস্তাগুলো দেখলে অবস্থা বুঝতে পারবেন যে রাস্তাগুলো অবিড়কবড় হয়ে গেছে, এক জায়গায় ভেঙে আছে, এক জায়গায় উঠে আছে এবং সেই কনস্ট্রাকশনের নাম করে তারা বছরের বছর কাটিয়ে দেয়। সেটা নিয়ে কোনো ধরনের ওদের হেলদোল নেই। এবং আমরা যে সেফটির জন্য, বেসিক্যালি আমরা সেফটির জন্য এখানে নিয়েছি, এখানে সুগম পার্কের বেসিক্যালি দেখবেন অনেক বয়স্ক মানুষরা এখানে ফ্ল্যাট নিয়েছে। সে সেফটি যে আমাদের প্রাচীরটা আছে, আমরা প্রাচীরগুলো দেখবেন একদম কম হাইট,
সেখান থেকে বহিরাগত লোক বাইরে এসে পরে অনেক সময় অনেক কিছু ওদের ভেতরে জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায়, সেই জিনিসগুলো প্রমাণ আছে এবং অনেক ধরনের ঘটনা ঘটেও গেছে। সেই জন্য আমরা সবাই ভয়ে আছি এবং বারবার ওনাকে বলা সত্ত্বেও ওনারা ওই যে বিল্ডিংগুলো, ওই বিল্ডিংয়ের যে আমাদের সাইডে যে আপনার দেওয়ালগুলো আছে যেগুলো উঁচু করা দরকার আমাদের সেফটি সিকিউরিটির জন্য, সেগুলো ওনারা কান দিচ্ছেন না। আপনার নামটা? আমার নাম অর্ণব মণ্ডল, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল सेक्रेटरी SPRF। इस सुगम पार्क में जो सुगम होम्स के द्वारा बनाया गया है, हम लोग 2013 में आए और शायद पहले आने वाले कस्टमर में मैं भी था। उसमें हम लोग जब आए तो क्या देखें, बिल्डिंग का कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध था। ना पानी था एमसी का, ना इलेक्ट्रिक मीटर था WBSC डीजल का, ना ही हम लोग क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड कराया गया, ना ही हम लोग को अच्छा सा गेट जो होता है मेन गेट वो भी नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि कंस्ट्रक्शन में था। चलिए, लेकिन पानी एटलीस्ट बिजली तो होना चाहिए था, गवर्नमेंट का जो उसने बोला था, क्लब तो होना चाहिए था ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें हम लोग को कम से कम अप्रॉक्स 2 साल 3 साल लग गए। हम लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ 3 साल बाद, काफ़ी लड़ाई के बाद पानी मिला, काफ़ी लड़ाई के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, काफ़ी लड़ाई के बाद मतलब हम लोग मॉनेटरी लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। इसको ये इतना डिले कर दिया इस प्रोजेक्ट को कि आज 8 साल में भी हम लोग को जो एम्यूनिटीज़ का पैसा लिया था, पैसा पहले ले लिया, एम्यूनिटीज़ आज तक भी प्रोवाइड नहीं किया गया, पूरी एम्यूनिटीज़। ये बोलता है, हम लोग कभी बोलता है कि हम लोग करने नहीं देते। आज हम लोग धरना कर रहे हैं पीसफुल, तो उस पर लीगल एक्शन लेने की धमकी देता है। जो आदमी को ये इसने जो आदमी उसका रुकावट डाला उस पर क्यों नहीं कभी बात को उठाया। हमारी एक कमेटी यहाँ शुरू से चलती फंक्शन करती है SPRF के नाम पे, लेकिन सुगम होम्स का उसके द्वारा बात करती है, लेकिन टालते जाती है, बात को टालते जाती है। लेकिन कभी किसी ना मेंटेनेंस की बात किया उसने, ना ही कभी कोई शिकायत किया किसी आदमी ने, कभी हमारा रोका है। कभी का रिटर्न दिखा दे मैं मान जाऊंगा, कभी उसके पास रिटर्न हमारा कुछ नहीं है, कभी उसने कुछ बोला हो, अपना ऑब्जेक्शन किया हो। वो तो सिर्फ टाइम पास करके इसको चलाना चाहता है। अभी आप देखेंगे कितना आदमी को ये तो फ्लैट एक साथ नहीं बिक गया। 28 फ्लैट यदि हमारी बिल्डिंग में है, एक साथ तो नहीं बिका, पार्ट में बिका। किसी को 10 फ्लैट हमेशा हर बिल्डिंग में खाली रहा। तो जैसे जैसे लोग आते हैं, मान लीजिए 2 साल पहले हमारी बिल्डिंग में 3 साल पहले हमारी बिल्डिंग में लोग आए, उनसे क्या वादा किया कि हम जो बाहर की बिल्डिंग है उसको हम पेंट करके जाएंगे। उस बिल्डिंग का स्थिति यह है कि मरम्मत एकदम करता ही नहीं है, ना उसका मेंटेनेंस करता है। अब बोलता है कि इतने पैसा में मेंटेनेंस नहीं होगा। सुगम होम्स बोलता है कि मेंटेनेंस हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा कम है। भाई पैसा कम है तो इतने सालों से तुम उस रेट में मेंटेनेंस क्यों कर रहे हो? हम लोग के साथ बैठ के हैंडओवर क्यों नहीं किया इतना सालों से? क्लब में मोटी कमाई कर रहे हो, क्लब में मोटी कमाई कम कर रहे हैं। 1 साल के अंदर में क्लब को देना था, जो 2016 में हम लोग को हैंड ओवर कर देना था अगस्त में, जो अभी तक 5 साल में दुनिया मोटा कमाई कमाए, वहाँ से करोड़ रुपया कमाई कर गए, हिसाब नहीं दिए। हम लोग सब जानते हैं, हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। आज हम लोग 6 महीना से उनको सारी चीज़ें, सारी मुद्दों को लेकर के बोले आप पेंटिंग कर दीजिए। रोड की स्थिति इतनी खराब है, RCC रोड का नाम से आप जाके गूगल में सर्च करिएगा, आप पाएंगे कि कम से कम 20 साल प्लस रोड चलता है, रोड की आयु होती है, लेकिन रोड की स्थिति आप जाके खुद से देख लीजिए। जो अप्रूव सैंक्शन प्लान के तहत जो पार्क बनाना था, जो ग्रीनरी देना था, जाके एक बार विजिट करके देखिए क्या स्थिति है। हम लोग 8 सालों से कंटिन्यू धूला धक्कर खा रहे हैं। आज रजिस्ट्रेशन का डिले होने के चलते लोगों की ये स्थिति है कि लोगों को पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, जबकि 3-3 साल 4-4 साल हो गए हैं, उन लोगों को टाइम पर रजिस्ट्रेशन सेम टाइम नहीं कर पाए। और नए रजिस्ट्रेशन में भी 3-3 साल हो गए, और रजिस्ट्रेशन की बात करने पे बोलते हैं कि ADDA डिले करता है। तो हमको ये बताइए ADDA कर रहा है, कौन कर रहा है? हम तो सुगम से फ्लैट खरीदे हैं, हमारी तो मांगे पूरी होनी चाहिए, हमारी रजिस्ट्रेशन टाइम पे होनी चाहिए। अभी पुराने जो फ्लैट ईयर थे, जो ऑनर थे, उनको वहाँ पर पहले जो बिना CC का उन्होंने वो दे दिया, हम लोग पोजीशन दे दिया, उसके जगह में वो ऑक्यूपायर डाल दिया है। अब ऑक्यूपायर डालने पर MC बोलता है कि सुगम से समझो, लेकिन ये बोलता है कि MC की गलती है, मेरी गलती नहीं है। हम लोग तो पूरा पैसा सुगम को दिए हैं, हम लोग अपनी पूरी पैसा सुगम को दिया, अपना कमाई, गाड़ी कमाई सुगम को दिया है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एज पर अप्रूव सैंक्शन प्लान कोई भी काम नहीं हो रहा है ठीक से, उसको देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग बार बार लेटर CO को, पूरा कंसर्न अथॉरिटी को, सभी को दिए हैं। अभी तक हमारा कंटिन्यू 10 दिन से 1 सप्ताह से कंटिन्यू धरना चल रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग वहीं यहाँ पर हम लोग आए ज्ञापन मेमोरेंडम सौंपने के लिए। उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया है, 3 बजे का, वो भी थाना के थ्रू हम लोग को मैसेज भिजवाया गया। नॉर्थ थाना के थ्रू हम लोग को मैसेज किया गया कि 3 बजे हम लोग CO साहब बुलाए हैं, 3 बजे 5-7 आदमी के साथ मीट करेंगे। मेरा नाम विद्याभूषण सिंह। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज़।